Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is The Making of the National Movement 1870 to 1947. Let's start. Chapter 8 The Making of the National Movement 1870 to 1947. Learning objectives. So this chapter will be going to know about rise of nationalism, nation in the making, rise of Muslim League, happenings of 1922-29, step towards independence, Indian National Congress, Swadeshi movement, role of Mahatma Gandhi freedom struggle and civil disobedience movement. Let's warm up. Who is shown in this picture? This is the picture of Bhagat Singh. What was his contribution to the Indian freedom movement? Bhagat Singh has contributed a lot. Even he has given sacrificed his life just for the freedom of India. Let's start. Rise of nationalism. The English East India Company came to India as a trading company and gradually took control of the administration of the entire country. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पर ट्रेड करने थी इंडिया में, लेकिन वो ट्रेडिंग करते करते उसने इंडिया पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड कर लिया एंड इट हैज रूल्ड दी कंट्री. जितने भी स्पेयर्स ऑफ लाइफ है दे वर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया. हर तरीके से उनके रूल से ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ा. पीपल बिगिन टू फील डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम इन देयर ओन कंट्री. अब लोग अपनी ही कंट्री में रहकर like na if you are living at your home and still somebody is just ruling you, so similarly was the case in our country, that we are living in our country but still we are ruled by the different people, different countries. That is very difficult for us to survive. Many revolts and public protests took place. बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, रैलीज निकाली among various section of society, जैसे peasants, tribals, जमींदार, सबने किया. With the spread of education की spread होने की वजह से people began to get more aware और conscious होने लगे of the changing political conditions जो change होने लगी. Although protest took place for various, अब जो protest होते थे वो बहुत सारे reason की वजह से होते थे and in different parts of the और country के different parts में होते थे. Yet all of them had more or less common goal. Then still सबके कुछ लोग कंबाइन होके करते थे, कॉमन गोल था, किसी का कोई दूसरा गोल था. All of them worked for sovereignty and propagated the idea of India became one nation. But main aim सबका यही था कि हम इंडिया को फ्री करा सके इस ब्रिटिश रूल से. Voice of nationalism began to be raised, which was demanding freedom of their country from the foreign rule. तो पूरे नेशन की आवाज यही थी जो उन्होंने आवाज उठाई भी, कोशिश भी करी कि हमें आजादी चाहिए. They were all demanding the freedom from the British rule, foreign rule. Fact file Indian Association, which was started by Surendranath Banerjee in 1851, it was one of the first political association जो form की गई थी against the British rule. Discontentment against British policies. बहुत सारे acts जो passed हुए by the British during 1870s और 1880s में, they started creating, उन्होंने बहुत सारा dissatisfaction create किया Indians के among. Viceroy of India from 1876 से 1880 तक जो Viceroy रहे इंडिया के Lord Lytton, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई बहुत सारी पॉलिसीज which agitated educated Indians. वो कौन कौन से थे? Taxes were increased to meet military expenses of the British Empire. Maximum age appearing होने के लिए एग्जामिनेशन फिर फॉर इंडियन सर्विस वो लोअर कर दी गई, फ्रॉम 21 to 19 कर दी गई. ड्यूटीज जो इंडियन कॉटन गुड्स पर रेज कर दी गई, इससे रिजल्ट क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आर्म्स एक्ट 1870 पास किया गया जो बैंड द पोजेशन ऑफ वेपन्स बाय इंडियंस. द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1870 वो पास हुआ which forbade the इंडियन प्रेस को उसने फॉरबिड किया to publish anything objectionable about the British government. It was seen as a deprivation of the freedom. इंडियन नेशनल कांग्रेस. बहुत से पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में. हर कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने से पहले 1885 में. ये थे इंडियन एसोसिएशन जो फाउंड की गई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1851 में. बॉम्बे एसोसिएशन उन्होंने फाउंड करी 1852 में, वो फाउंड हुई बाय जी सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंदाचार्य. फिर पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में फाउंड करी गई बाय जस्टिस रानाडे एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फाउंड करी गई बाय फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन त्यागजी. However, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये लोकलाइज थी और इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत लिमिटेड था, बहुत ही कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट
किया, लेकिन बहुत ही जल्दी जो नीड थी वो फेल्ट हुई हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्रेडिट फॉर गिविंग अ कॉन्क्रीट एंड फाइनल शेप इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो शेप देने का जो क्रेडिट था वो गया रिटायर्ड इंग्लिश सर्वेंट एओ ह्यूमे को। उनके एफर्ट्स की वजह से और सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई दिसंबर 1885 के अंदर। उनका पहला सेशन हुआ था मुंबई में, वो प्रिसाइड किया था बाय डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने। 72 डेलीगेट्स थे वहां पे पूरे इंडिया में से जिन्होंने इसको अटेंड किया था, जिसमें दादाभाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, बदरुद्दीन त्याबजी थे। दीज आर द पीपल। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जिन्होंने फ्रेम करी, ये लोगों ने अटेंड किया था उसको, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड बदरुद्दीन त्याबजी मेजर लीडर्स थे। अब नेशन इन द मेकिंग। अब जो मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस, अर्ली फेज जो था कांग्रेस का, उसको हम टर्म करते हैं एज मॉडरेट फेज। अर्ली फेज जो था, उस फेज में क्या हुआ था, जो मेन डिमांड थी नेशनलिस्ट मूवमेंट की वो थी कि मोर से फॉर इंडियंस इन द पार एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए हमें अपने इंडियंस के लिए, वी वांट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मॉडरेट्स बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में एंड इन मेथड्स ऑफ परसुएशन। वो रेगुलरली सेंड करते थे पेटिशंस, रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट को चेंज के लिए कि भाई चेंज किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी जो कांग्रेस ने उठाई इस टाइम पर, वो समराइज है ऐसे। इंडियनाइजेशन जो है हायर ग्रेड्स के ऑफ सर्विस एंड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसकी पावर, ग्रेटर से ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, स्वराज या सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो इम्पोज हुआ लैंडलॉर्ड्स पर एंड पीजेंट्स, मोर मनी फॉर इरिगेशन, ऑल्सो गवर्नमेंट ने एड किया फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज एंड विड्रॉल ऑफ बैन ऑन फ्री ट्रेड। तो ये जो अबव मेंशन डिमांड्स हैं वो रिवील करता है कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स को। ऑल्दो कांग्रेस जो है वो बॉडी है मेनली फॉर्म हुई द इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट, येट ज्यादातर जो डिमांड्स थी रेज्ड बाय देम कंसर्न द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पुअर और सोशियो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड पीपल थे वो भी एड्रेस्ड हुए इस डिमांड्स में। ये डिमांड्स ने हेल्प किया कांग्रेस को इन मेकिंग अ बेटर कॉन्टैक्ट बना सके ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के साथ। राइज ऑफ रेडिकल्स एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 15 तक, रिलक्टेंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू एक्सेप्ट करना किसी भी इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट, उसने बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्शियस पीपल को डिसअपॉइंट किया। जैसे लीडर्स हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, ये चाहते थे कि इंडियंस की सेल्फ रिलायंट बने और डेवलप करें सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग देमसेल्फ। उन्होंने लोगों को बताया कि रेमेडी उनकी सैड कंडीशन की वजह से ले इन देयर ओन हैंड एंड दैट fearless होना चाहिए, दे शुड बी fearless एंड स्ट्रॉन्ग। दे डीपली हेटेड द ब्रिटिश रूल को, उन्होंने बहुत अंदर से वो तक वो बहुत ही पसंद नहीं करते थे और उन्होंने डिक्लेयर किया स्वराज, कि वही उनका गोल है कि वो स्वराज है। तिलक ने जो गंगाधर तिलक थे उन्होंने अपनी पावरफुल स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जो मैं उसे लेके रहूंगा। उनका बहुत ही विश्वास था स्ट्रेंथ ऑफ मासेस में कि अब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कुछ कर दिखाएंगे। उन्होंने प्लान किया कि वो स्वराज को पाके रहेंगे मास एक्शंस के थ्रू, खाली एक बंदे के एक्शन से नहीं, जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर करेंगे। तो उनकी डिमांड्स ज्यादा रेडिकल थी मॉडरेट के कंपैरिजन में, तो उन्होंने बुलाया एक्सट्रीमिस्ट को। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो वाइसरॉय थे बंगाल के लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। वो सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस था इन ब्रिटिश इंडिया, कंप्राइजिंग बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, नाउ ओडिशा। अब जो रीजन है गिवन फॉर द डिवीजन वाज दैट कि बंगाल जो है इट वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस एंड डिवीजन वाज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ब्रिटिश हाउएवर उसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे बंगाल को डिवाइड करने के। देयर वाज एक पावरफुल वेव थी नेशनलिज्म की बंगाल में, जो वो चाहते थे उसको खत्म करना। अब ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है वहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन है, जबकि वेस्ट बंगाल वहां पर प्रीडोमिनेटली हिंदू पॉपुलेशन है। तो ये जो पार्टीशन बनाया गया था हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने के लिए बनाया गया था जान के, ताकि वो वीकन कर सके उनके जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट उन लोगों ने स्टार्ट की थी उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया कि और एक साइड में मुस्लिम्स हो गए, एक में हिंदू हो गए। पीपल जो थे बंगाल के उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस प्रपोजल को पार्टीशन की, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। मीटिंग्स भी हुई, रैलीज भी हेल्ड हुई बंगाल में, वाइड स्प्रेड अपोजिशन भी हुआ, लोगों ने मना भी करा, प्रोटेस्ट भी हुए।
देयर वर रैली निकाली गई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, नेशनल मॉर्निंग भी हुई, लेकिन एक नया प्रोविंस ईस्ट बंगाल का एग्जिस्ट हुआ विद ढाका उसकी कैपिटल इन अक्टूबर 1905। फैक्ट फाइल, रियल मोटिव जो है पार्टीशन का वो आप एसरटेन कर सकते हो फ्रॉम द रिमार्क मेड बाय ब्रिटिश होम सेक्रेटरी राइजले, बंगाल यूनाइटेड इज पावर। बंगाल ने डिवाइडेड द विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है टू स्प्लिट अप एंड देयरबाय वीकन अ सॉलिड बॉडी ऑफ ओपोनेंट्स हु आर रूल। रविंद्रनाथ टैगोर ने लेड किया प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑन द डे ऑफ पार्टीशन पीपल ने थ्रू आउट बंगाल टाइड राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट ताकि वो शो कर सके सॉलिडारिटी को एंड ब्रदरहुड। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट दो पावरफुल वेपन्स हैं एक्सट्रीमिस्ट की। स्वदेशी जो है लिटरली मीनिंग ऑफ वंस ओन कंट्री। इट वाज एम्ड एट प्रमोटिंग इंडिजिनियस इंडस्ट्री बाय बॉयकॉटिंग द यूज ऑफ ब्रिटिश। अब स्वदेशी या बॉयकॉट दो पावरफुल वेपन्स थे एक्सट्रीमिस्ट के। अब स्वदेशी का लिटरली मतलब था कि अपनी खुद की कंट्री, अपना स्वदेश। तो उनका एम था कि वो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, कैसे हम ब्रिटिश के गुड्स को लेना बंद कर दें, बॉयकॉट कर देंगे, तो हम अपने गुड्स स्वदेशी चीजें लेंगे जो हमारे देश में बनती है। तो मूवमेंट्स एम्ड हुआ एट प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति को जगाना। पीपल दे वर आस्क्ड टू एब्सटेन फ्रॉम बाइंग फॉरेन प्रोडक्ट्स, कि फॉरेन का हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। दैट इज nowadays before sometimes few years back, few time, so we have seen about that make in India. So everything we should use which are made in India. We should try to use less products of other countries. ह्यूज बॉनफायर्स ऑर्गेनाइज करी गई ताकि ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। स्टूडेंट्स ने परसुएड करते थे शॉपकीपर्स को कि वो ब्रिटिश के प्रोडक्ट ना बेचें। पीपल ने बॉयकॉट करते थे ब्रिटिश के स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना। स्वदेशी मूवमेंट ने इस तरीके से आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गई थी। तो ब्रिटिशर्स को फाइनली फोर्स्ड कि वो एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, और उसी बीच में कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई थी 1907 में। राइज ऑफ मुस्लिम लीग, ग्रेटेस्ट थ्रेट जो था ब्रिटिश को वो ये था कि यूनिटी ना हो जाए हिंदू और मुस्लिम के। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो कब, जब वो अपराइजिंग ऑफ 1857। तो डिवाइड और रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की वो सक्सेसफुल हुई कुछ हद तक, क्योंकि कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे जो कांग्रेस से दूर रहते थे, तो कंसिडरिंग या हिंदू, क्योंकि उसको हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको इनकरेज किया गया, ब्रिटिशर्स ने उनको और मतलब फोर्स किया, उनको बातों में फंसाया, इनकरेज करा कि वो अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना ले विच फर्दर देयर इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सेपरेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। अब मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी नाउ फेवर्ड थी बाय द गवर्नमेंट ताकि वो वीकन कर सके नेशनल मूवमेंट को और कमजोर कर सके। तो 1906 में जो आगा खान एंड नवाब सलीमुल्ला वो मिले वाइसरॉय मिंटो से परमिशन के लिए ताकि वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर सके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तब फाउंड की गई थी ताकि वो प्रमोट कर सके मुस्लिम कम्युनिटी को और ज्यादा। मेन एम्स ऑफ द लीग कौन कौन से एम्स थी, ताकि प्रोटेक्ट कर सके, एडवांस कर सके पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स को, राइट्स को भाई और मजबूत बनाया जाए। टू इंश्योर कि मुस्लिम्स डू नॉट डेवलप हॉस्टिलिटी, ब्रिटिश के टुवर्ड्स ना डेवलप करें। प्रमोट करना लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और डिमांड करना सेपरेट इलेक्टोरेट अपनी कम्युनिटी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और द नेशनल मूवमेंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन हुआ था 1914 में और द ब्रिटिश ने यूज किया था इंडियन रिसोर्सेज और सोल्जर्स को इस वॉर को लड़ने के लिए। इंडियन लीडर्स ने उम्मीद रखी थी दैट इफ दे एक्सटेंडेड, अगर उन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट इसी तरीके से करता रहा वॉर के टाइम, उनकी डिमांड ग्रांट हो जाएंगी आफ्टर द वॉर ओवर होने के बाद। लेकिन मीनवाइल जो होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया इंडिया के अंदर, किसने स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक ने। विधि इस उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनका एम था। फिर आए एनी बेसेंट जिन्होंने एक पायनियरिंग फिगर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उन्होंने भी ज्वाइन किया था मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट स्प्रेड हुई थी ऑल ओवर इंडिया डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज। अब लखनऊ पैक्ट, देयर वर दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस में। द ब्रिटिश ने इम्पोज की थी बहुत सारी एट्रोसिटीज इन तुर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एज सुल्तान ऑफ तुर्की जो थे उनको हेड ऑफ द मुस्लिम्स माना जाता था वर्ल्ड में, खलीफा नाम था उनका, उनको सुल्तान जो थे वो वहां के, उनको पूरे मुस्लिम्स का हेड माना जाता था वर्ल्ड के। तो वो अनॉयड हुए ब्रिटिश के साथ। तो एट 1916 में लखनऊ सेशन जो था कांग्रेस का, वहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस यूनाइट हो गए, वो मिल गए और उन्होंने डिसाइड करा कि वो स्वराज के लिए इकट्ठे होकर लड़ेंगे। फिर
उसी सेम सेशन के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी रीअलाइंड हुए 9 साल बाद। दस इंडियन नेशनल मूवमेंट फिर से एक नया फेज ले लिया और बाय द एंड ऑफ 1918 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत मास मूवमेंट हो गया। उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए। सबसे प्रोमिनेंट था कि अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी ऑन टू द पॉलिटिकल सीन, जब गांधी जी की एंट्री हुई। रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, वो अनआर्ग्युएबली महात्मा गांधी। जिस तरीके से उन्होंने शेप और कैरेक्टर दिया हमारी आजादी को स्ट्रगल में, वो एक स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है। उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ अपनी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस की। बहुत ही पाइवटल रोल प्ले किया उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। उनकी नॉन वायलेंट वेज थे और पीसफुल मेथड्स थे, वो फाउंडेशन था ताकि इंडिपेंडेंस को हम ब्रिटिश से पा सके। उन्होंने लड़ाई झगड़ा ना करने के बजाय सोल्यूशन करने की कोशिश करी। लेकिन व्हेन ही केम बैक टू इंडिया ओनली टू फाइंड दैट हिज ओन कंट्री was being ruled by the British and his fellow citizens were being treated harshly by the British, तो वो सब सोच के उन्होंने डिसीजन लेने की सोची। रॉलेट एक्ट हुआ 1990 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया 1990 में, जो ऑथराइज था, गवर्नमेंट को ऑथराइज किया ताकि वो किसी भी पर्सन को अपनी मर्जी से ना बिना किसी वजह के जेल में डाल देंगे। अब ये एक्ट के साथ एक्ट को भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा क्योंकि उनका एम क्या था, एट द सप्रेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु आर हंटेड डाउन, इम्प्रिजन्ड और हैंड। तो वो क्या करते थे, मजबूर करते थे और लोगों को जेल में डालते थे, फिर या तो उनको फांसी दी जाती थी या उनको मार दिया जाता था, उनको तड़पाया जाता था। अब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1990 में, हड़ताल और प्रोटेस्ट मीटिंग्स हुई पूरी कंट्री के अंदर। रॉलेट एक्ट को अपोज किया लोगों ने। अब अप्रैल 6 1990 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया और उनके साथ अरेस्ट हुए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन पंजाब। अप्रैल 13 में 1990 में ऑन बैसाखी पे एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग हुई जलियांवाला बाग पर, वहां पर हुई अमृतसर में, ताकि प्रोटेस्ट डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जो अरेस्ट किया था उनके अगेंस्ट। तो वहां पर ग्रुप ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो जनरल डायर ने लगा रखे थे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था कि उसकी इकलौती एक एग्जिट थी और उसी एग्जिट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और उसको एग्जिट को ब्लॉक करने के बाद उन्होंने ओपन फायर कर दी, बंदूकें चलानी शुरू कर दी, गोलियां बरसाई बिना किसी वार्निंग के। और जिन लोग निहत्थे लोग थे, विमेन थे, बच्चे थे, वो सब थे। थाउजेंड्स पेरिश्ड, बहुत सारे लोग मर चुके थे उसमें, मरे और कितने इंजर्ड हुए। लेकिन जलियांवाला बाग में इंसिडेंट ने एक नेशन वाइड डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया ब्रिटिश के टूर। तो अनरिपेंटेंट डायर ने डिफेंड करा अपना एक्शन बाय टर्मिंग इट नेसेसरी टू टीच अ मॉरल लेसन टू पंजाब, को सबक सिखाना चाहते। अब वायलेंट रिएक्शन जो था पीपल का, उन्होंने कंपेल करा ब्रिटिश को कि इंक्वायरी होल्ड की जाए इंसिडेंट में। और इंक्वायरी जो हंटर कमीशन ने कंडक्ट की, उन्होंने जस्टिफाई करा फायरिंग, बट डायर वाज नॉट फॉरगिवन बाय इंडियंस फॉर हिज ब्रूटल एक्ट। जनरल डायर को नहीं फॉरगिव किया गया। फैक्ट फाइल, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, रविंद्रनाथ टैगोर ने डिक्लाइन किया था नाइटहुड कॉन्फर्ड हिम बाय द ब्रिटिश। माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के 1912 से 1919 तक, उन्होंने एंडोर्स किया जनरल डायर एंड कॉल्ड मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग एज द करेक्ट एक्शन। ओ डायर जो असैसिनेट कर दिया गया उनको लंदन में 1940 में, क्योंकि उन्होंने फॉर हिज रोल बाय द रेवोल्यूशनरी उधम। केस स्टडी खिलाफत मूवमेंट 1920 1919 में एक मूवमेंट लॉन्च की गई थी ताकि ओटोमन एम्पायर तुर्की को बचाया जा सके, जो बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन पर था पहली वर्ल्ड वॉर के बाद। जो सुल्तान थे और कैलिफ ऑफ तुर्की पोजीशन एज अ रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स वर्ल्ड के, वो डर गए थे क्योंकि ब्रिटेन ने पार्टीशन कर दिया था ओटोमन एम्पायर। 1920 में जो अली ब्रदर्स जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी ताकि वो ब्रिटिश को प्रेशराइज में कर सके, उनको प्रेशर में डाल सके अपने कैलिफ को प्रोटेक्ट करने के। जैसे कि लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहिनी, उन्होंने भी मूवमेंट ज्वाइन किया। गांधी जी ने सपोर्ट करा मूवमेंट को एज ही परसीव दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुस्लिम को एक किया जा सकता है। 1920 में एक अलायंस बनाई गई खिलाफत लीडर्स के बीच में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच। ये डिसाइड हुआ बाय द लीडर ऑफ बोथ द ग्रुप्स कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सेटअप करेंगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। अंडर द लीडरशिप थी गांधी जी की। एज इंडियन मुस्लिम्स अब डेवलप्ड हो चुके थे, उनके अंदर एग्रेशन आ चुका था उनके एटीट्यूड के टुवर्ड्स ब्रिटिश के लिए, तो खिलाफत मूवमेंट ब्रॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई 1920 में। सितंबर 1920 में एट द कैलकाटा सेशन में गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन, अर्जिंग इंडियंस नॉट टू कॉपरेट, ना करें विद द ब्रिटिश, और डिफाइन किया स्वराज को अल्टीमेट एम, स्वराज तो हम मिल लेके ही रहेंगे।
तो मूवमेंट के फॉलोइंग एम्स थे कि टू रिड्रेस द रॉन्ग्स डन टू पंजाब एंड तुर्की में जितना भी गलत हुआ उसको ठीक किया जा सके और अटेन करना स्वराज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से, लेकिन शांति की तरीके से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर नॉन कॉपरेशन के मेथड्स क्या थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एम किया टू डिस्ट्रक्ट नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करना। इट वाज टू प्रोसीड स्टेजेस में उन्होंने प्रोसीड किया, स्टार्ट किया रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स जो इंडियंस ने रिसीव किए थे ब्रिटिश से, उन टाइटल्स को खत्म किया। गांधी जी ने रिटर्न कर दिया केसरी हिंद मेडल, while रविंद्रनाथ टैगोर एंड जी सुब्रमण्य ने had already returned the titles। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ब्रिटिशर्स जो चला रहे हैं वहां पर जाना बंद कर दे, बॉयकॉट कर दे। इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, वो सेटअप किए गए। पीपल को बोला गया टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, खरीदना बंद कर दे। बड़ी बड़ी बॉनफायर्स लगाई गई ताकि उनके फॉरेन गुड्स को जलाया जा सके। गांधी जी ने एडवोकेट किया स्पिनिंग एंड वियरिंग, खादी बनानी शुरू करी और ब्रिटिश के बनाए हुए कपड़े तक को पहनना बंद कर दिया। पीपल ने रिफ्यूज किया कास्ट की अपना वोट्स इलेक्शन में नहीं देंगे रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए लेजिस्लेचर। लॉयर्स ने बॉयकॉट कर दिया, कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। स्ट्राइक्स हुई, हड़ताल हुई सारी कंट्री के अंदर। एक कैंपेन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स स्टार्ट हुआ ताकि लास्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट तक। बरदौली इन गुजरात को पहला स्टेट चुना गया जहां पर टैक्सेस पेड नहीं हुई। इंडियंस ने रिफ्यूज कर दिया आर्मी में सर्व करने के लिए, इवन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मूवमेंट गेन बहुत सक्सेस हुई जबकि स्कूल्स और कॉलेजेस को डिजर्ट कर दिया गया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूड विद द रिप्रेसिव मेजर, अपना करते रहे। उन्होंने कम से कम भी 30,000 लोगों को अरेस्ट भी किया। इन इट्स अहमदाबाद सेशन में जो 1921 में हुआ हकीम अजमल खान के अंडर, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू रखेगी इस मूवमेंट को जब तक पंजाब और खिलाफत के जितने भी प्रॉब्लम्स है, दुख हैं, वो एड्रेस नहीं हो जाते, जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता। गांधी जी ने एम्फसाइज किया कि पूरी की पूरी जो मूवमेंट है वो पीसफुल रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाउएवर मूवमेंट फेल्ड, वो रिमेन नॉन वायलेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में। अब वायलेंट इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा गोरखपुर ऑन February 5, 19। उन्होंने फोर्स किया गांधी जी को कि कॉल अप करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पुलिस एट चौरी चौरा ने फायर करा एक ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स को। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने रिटेलिएट बाय बर्निंग डाउन पुलिस स्टेशन, causing the death of 22 English policemen. Happenings of 1922-29, Swaraj Party 1923. After the withdrawal, non-cooperation movement के withdrawal के बाद कांग्रेस जो थी was a house divided. CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई 1923। वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्ट करे, गवर्नमेंट को ज्वाइन करे एंड देन वर्क टू डिसरप्ट द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम इनसाइड, अंदर से करेंगे वो काम। फिर उनको ज्वाइन करने के बाद तो स्वराज पार्टी फेड हो गई सीआर दास के डेथ के बाद 1925। अदर पार्टीज थी 1925 में, कुछ अदर डेवलपमेंट्स आल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग मिड 1920, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया वो बनी गई इस टाइम पर। जबकि जो फॉर्मर थे दे वर्क टू प्रमोट नेशनलिज्म के लिए काम किया और बाद के लोगों ने वर्क किया टू क्रिएट क्लासलेस सोसाइटी। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनी थी बाय द रेवोल्यूशनरी लीडर्स जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अदर्स ने मिलकर बनाई। फिर आती है आपकी साइमन कमीशन जो 1927 में आई। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कमीशन हेड करेंगे बाय लॉर्ड साइमन ने जो दी, ताकि वो इंट्रोड्यूस करा सके फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। कमीशन की कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था उसमें। जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो बॉयकॉट कर देंगे कमीशन में, जब इंडिया का कोई मेंबर ही नहीं है। जब कमीशन इंडिया के अंदर आई 1928 में तो इट वाज ग्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशंस और स्लोगन थे साइमन गो बैक एंड इट वाज रेज्ड अलोंग विद ब्लैक फ्लैग्स के साथ उसको भगाने की कोशिश की गई, उसको हटाने की कोशिश। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, कांग्रेस और अदर गार्ड्स आल्सो एंड द ओल्ड गार्ड्स टुक अ बैक सीट। कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ लाहौर 29 दिसंबर 1929। सेशन को प्रिसाइड ओवर किया बाय जवाहरलाल नेहरू ने। इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, जब पीपल शपथ लेंगे, प्लेज लेंगे पूरी इंडिपेंडेंस। नाउ वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे। एट द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 ट्राइकलर फ्लैग को अनफर्ल किया गया था बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी अमिडस द चैंटिंग थी उसमें। वहां पे कौन सा हमने सॉन्ग गाया था अपना, वंदे मातरम एंड इनकलाब जिंदाबाद, लोगों ने नारे लगाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली थी साल्ट प्रोडक्शन पे एंड उन्होंने इम्पोज किया एक टैक्स सॉल्ट पर, एसेंशियल कमोडिटी।
फॉर रिच और पुअर, क्योंकि सॉल्ट तो एक ऐसी चीज है जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर सबको चाहिए, बहुत ही जरूरी चीज थी। तो मार्च 12 1930 में महात्मा गांधी अलॉन्ग विद 78 वॉलंटियर्स अपनी उन्होंने फेमस दांडी मार्च शुरू की। साबरमती आश्रम से लेके कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक गांधी जी और उसके फॉलोअर्स ने एक डिस्टेंस कवर किया 375 किलोमीटर का 24 डेज में। वो दांडी पहुंचे अप्रैल 6 में और वायलेट किया लॉ बाय मेकिंग। फिर पूना पैक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडिंग थे सेपरेट, उन्होंने डिमांड किया एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स के लिए, जो हरिजन थे उनके अलग चाहिए। गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किया इसको एज ही बिलीव कि इट वुड वीक, इससे क्या होता है नेशनल मूवमेंट और ज्यादा वीक हो जाएगी और डिसइंटीग्रेट ना हिंदू सोसाइटी बढ़ जाएगी। 1932 के अंदर ब्रिटिश ने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड, जिसके बाय विच जो अलग इलेक्टोरेट को ग्रांट किया गया हरिजन। Gandhi ji imprisoned at Yarawada jail in Pune and went on a hunger strike to oppose the move. उसके बाद गांधी जी ने को जेल डाला गया येरावाड़ा जेल में पुणे में, वहां पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। फाइनली ये कॉम्प्रोमाइज किया गया सितंबर 24 1932 में जब पूर्ण पैक्ट साइन हुआ। बाय दिस पैक्ट ये डिसाइड हुआ कि सीट रिजर्व की जाएंगी जो लोअर कास्ट है, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस है, आउट ऑफ जनरल इलेक्टोरेट सीट्स, इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कैंडिडेट्स इन सीट्स के लिए इलेक्ट किए जाएंगे जनरल इलेक्शंस के। गांधी जी डिड नॉट, कोई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड नहीं की थी जो लंदन में हुई 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बुलाई गई थी और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो प्रेस्क्राइब हुई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यूनिट्स 1936 लखनऊ से। हाउएवर ये एग्री किया गया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल असेंबलीज, ताकि जो हेल्ड होती थी 1937 में। इलेक्शंस जो हेल्ड हुए 1937 में कांग्रेस ने सिक्योर किए मेजोरिटी एंड उन्होंने गवर्नमेंट बनाई इन 7 ऑफ द 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब मुस्लिम लीग आल्सो वन फ्यू सीट्स उनमें उनकी भी थी, उसमें उनके भी इलेक्टोरेट। स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, अब टू नेशन थ्योरी, द मुस्लिम लीग फॉर्म जो हुए थे 1906 में सबसे प्रोमिनेंट कम्युनल पार्टी थी। 1939 में जब कांग्रेस लीडर्स ने रिजाइन कर दिया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, तो मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट करा था उस डे को डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम हिंदू डोमिनेशन। In 1940 at the end of Lahore session, Muslim League जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया which adopted मोहम्मद अली जिन्ना को टू नेशन थियरी, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था रेजोल्यूशन को और जिन्ना ने डिमांड किया था एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जिसको पाकिस्तान नाम दिया गया, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि मुस्लिम एक माइनॉरिटी होने के साथ वुड नॉट गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती उनको गवर्नेंस में, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी एक अलग कंट्री अलग देश बनाया जाए। जिन्ना जो थे जिन्होंने डिमांड कर रखी थी सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो एमिंग टू वीकन द नेशनल मूवमेंट को वीकन करने के लिए ब्रिटिश ने सपोर्ट किया उस डिमांड को फुलफिल किया। उन्हें पता था कि अगर हम इनको एक सेपरेट देश बना देंगे, उनकी डिमांड मान लेंगे तो हिंदू मुस्लिम में यूनिटी खत्म होगी और मूवमेंट भी कमजोर पड़ जाएगी। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन इंडिया के बिहाफ पर, बिना कंसल्टिंग कांग्रेस को कंसल्ट किए बिना। लेकिन बट इंडिया स्टैंड दिस टाइम बहुत ही क्लियर था, अगर वॉर हुआ फ्रीडम के नाम पर और डेमोक्रेसी and if that very freedom को denied किया गया to Indians को, तो India was not going to be associated with it। और अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ बाय गांधी जी ने करा विद विनोबा भावे, वो पहले पर्सन थे टू ऑफर सत्याग्रह। विद इन अ शॉर्ट पीरियड में कम से कम भी 25,000 सत्याग्रह थे बिहाइंड बार्स, जिसमें थे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे कांग्रेस। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अगस्त 1942 में गांधी जी ने स्लोगन दिया क्विट इंडिया का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट ऑन अगस्त 8 1942 एट मुंबई और उन्हें पास की क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को विच प्रपोज द स्टार्टिंग ऑफ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर गांधी जी। अब रेजोल्यूशन ने डिमांड किया इमीडिएट एंड होना चाहिए ब्रिटिश रूल का इंडिया में। गांधी जी ने मंत्र दिया या तो करो या मरो, डू और डाई। रेप्रेशन जो था, जो ब्रिटिश कंटिन्यूड उनका दबाव बना हुआ था, अगस्त 9 1942 में गांधी जी और अदर कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी करा और कांग्रेस को इलीगल माना। पीपल ने लड़ाई भी करी, वायलेंटली रिएक्ट भी करा इस पर और बहुत सारे ब्रिटिशर्स अथॉरिटी पर उन्होंने अटैक भी किया, जैसे कि पुलिस स्टेशन पर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ और टेलीफोन वायर्स को काट दिया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट went all out to crush the movement। thousands of people जो थे उनको जेल में डाल के उनको मारा गया। फैक्ट फाइल, कामलुक्स 1942 में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एक 73 ईयर ओल्ड बहुत ही पुअर अनपढ़ विमेन थी मातंगिनी हाजरा,
उन्होंने एक प्रोसेशन किया ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट, दो ऑर्डर टू स्टॉप उन्होंने मार्च किया ऑन कॉलिंग टू हर कॉमरेड्स टू कैरी ऑन। वो उन्होंने हाथ में रखा ट्राइकलर फ्लैग held aloft in her hand even when she was shot on the forehead and died। उनके माथे पर गोली चलाई गई, वो मर भी गई और उनके हैंड्स ने हाथ में झंडा सीधा ही रहा। तो उनका जो रिमार्केबल ब्रेवरी थी वो एक मैटर बन गई प्राइड फॉर ऑल इन्वॉल्व इन स्ट्रगल। टुडे सैडली शी इज फॉरगॉटन। आज उनका नाम हम भूल चुके हैं, नहीं लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस एंड INA। सुभाष चंद्र बोस जो थे बहुत ही डायनेमिक लीडर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। उन्होंने कांग्रेस को जो है लेफ्ट की कांग्रेस किसकी वजह से, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से गांधी जी और उनके बीच में। अब INA जो इंडियन नेशनल आर्मी थी या आजाद हिंद फौज, ये फॉर्म हुई थी साउथ ईस्ट एशिया में 1944। INA विद जापानीज फोर्स के साथ एडवांस टुवर्ड्स इंडिया वाया बर्मा। मई 1914 में आर्मी ने कॉन्कर करा इम्फाल और कोहिमा को। बोस ने स्लोगन दिया दिल्ली चलो, दिल्ली मार्च किया। हाउएवर विद द डिफीट, जापान की जब डिफीट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो INA को अबंडन करना पड़ा था अपने सारे प्लान्स को। कैजुअलिटीज और डिफीट हिट द INA। ये माना गया था कि नेताजी को किल्ड किया गया प्लेन क्रैश में जब वो टोक्यो जा रहे थे 1945। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मार्च 1946 में प्राइम मिनिस्टर एटले जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा इंडिया टू होल्ड टॉक्स विद इंडियन लीडर्स के साथ बात करने के लिए एंड सेटल द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। उन्होंने सजेस्ट करा अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करी जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके एंड फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। इट हेल्ड टॉक्स विद द इंडियन लीडर्स एंड देन उन्होंने उनके प्रपोजल को सुना और रखा, जिसको बोला कैबिनेट मिशन प्लान। जबकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा था प्लान ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, उसका सीरियस डिफरेंसेस थे विद द मुस्लिम लीग ऑन मेनी इश्यूज। एज अ रिजल्ट जो कम्युनल राइट्स टुक प्लेस हुए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और उन्होंने क्या कॉज किया, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। सितंबर 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई विद जवाहरलाल नेहरू एज वाइस प्रेसिडेंट थे, और मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया उसको बाद कुछ टाइम बाद। बट लीग कंटिन्यू रही विद इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान अंडर द टू नेशन थियरी। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई जुलाई 1946 में, कांग्रेस इसमें जीती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको इलेक्ट किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, जिन्होंने फंक्शन करना शुरू करा फ्रॉम December 9, 1946। फैक्ट फाइल, पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई तामलुक में बंगाल ड्यूरिंग 1942, वाज नोन एज जातीय सरकार। इन सतारा महाराष्ट्र में दिस वाज नोन एज पत्री सरकार। द माउंटबेटन प्लान 1947 में, मार्च 24, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनको अपॉइंट किया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। Amidst a highly volatile situation, जो arrived हुए इंडिया में on 3rd of June 1947 and presented a plan for the division of India into two independent states, India and Pakistan. इंडियन स्टेट्स को राइट दिया गया कि वो अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड करें। पाकिस्तान को कंसिस्ट किया गया वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश है आज, और सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो वॉलेंट कम्युनल राइट्स थे एंड कॉन्टिन्यूस प्रेशर जो था जो मुस्लिम लीग ने किया पाकिस्तान के लिए, अल्टीमेटली उन्होंने पार्टीशन बंद कर दिया इंडिया का अनअवॉइडेबली। इंडिया बिकम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 15 अगस्त 1947 को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट वर्किंग हुई नेशनल पार्लियामेंट। मेंबर्स जो थे उन्होंने शपथ ली कि वो अपना पूरा डिवोट करेंगे देमसेल्व्स की सर्विस ऑफ इंडिया और उनके प्रोग्रेस में। इंडिया का ट्राई कलर हॉइस्ट हुआ नेशनल रेड फोर्ट पर, और एक नया चैप्टर शुरू हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ग्लॉसरी, vernacular, local, persuasion to believe something, disrupt to stop something happening, compel to force, knighthood title given by British achievement, assassinated to murder. Quick review, INC formed हुई by efforts of AOU में and All India Organization. First phase of INC dominate हुई by the moderate leaders जो believe करते थे British rule was just. Second phase INC का dominate हुआ by the extremists who wanted self-rule, Swaraj and independence from British authority. Partition of Bengal in 1905 intensified the rising national consciousness, was a deliberate result of the British policy of divide and rule. Swadeshi and boycott movement direct result थे partition of Bengal. As a result of British policy of divide and rule, Muslim League formed हुई 1906. Gandhiji led a non-violent freedom movement and also headed the activity of Indian National Congress. He led three mass movements, namely non-cooperation movement, civil disobedience movement, and Quit India. सुभाष चंद्र बोस जो थे मोस्ट डायनेमिक लीडर्स थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट किया ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन गांधी जी एंड हिम। मोहम्मद अली जिन्ना हेडेड द मुस्लिम लीग एंड फॉट फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स ऑन द
basis of religion. और इसका रिजल्ट हुआ पाकिस्तान was created along with independence of India. And India gained its independence from British rule in 1947. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.